Hello everyone, welcome to Bano IS and welcome to the series on 46-year previous year question. In this series, I have been discussing 46-year question from 1979 to 2024 for Indian economy for prelims examinations. We are dividing all the question into 5 units and I started with the unit 5 which is tertiary sector of the economy. Here we have a question from 2012. The basic aim of lead banking scheme is that. So 2012, the basic aim of lead banking scheme is that. Let's read our options. Option A, big bank should try to open office in each district. Big bank should try to open office in each district. Second, there should be stiff competition among the various nationalized banks. There should be stiff competition. Why there should be stiff? The competition is okay. Why stiff competition? This looks a little extreme. We can reject it. Individual banks should adopt particular district for intensive development. This looks like okay, even if you have not read lead bank scheme, this looks like an okay option. Then you have all the banks should make intensive effort to mobilize deposit. I mean, they should obviously make effort to mobilize deposit, but that does not seem to be related to lead bank scheme as such. So we can also reject that. Now, if you have studied about evolution of banking in India, you must have studied about lead bank scheme. This scheme actually involved adoption of district by certain banks, and the bank which adopted that district had to make all-round effort to provide credit and banking facility to that bank. So individual banks should adopt particular district for intensive development. That is the idea, so that once a district is adopted by a bank, वो बैंक उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लेगी. So this was your option, correct option. Let's read about this scheme. The lead bank scheme was introduced in 1969, right, by the Reserve Bank of India to improve banking services in rural areas. So it is part of the effort of financial inclusion. The scheme assigns lead bank to district. तो एक बैंक को हर डिस्ट्रिक्ट के लिए लीड बनाया जाता था एंड विच कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट. तो वहां पे जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन थे उनके एफर्ट को वो कोऑर्डिनेट करती थी. दिस वाज द sense of the scheme, therefore option C was correct. अभी हम और भी डिटेल को देख लेते हैं. The basic aim of lead bank scheme is that the bank should adopt particular district for intensive development by offering loans and banking services. जैसा कि हमने पहले देखा. Objective, क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? To increase the flow of credit to agriculture, MSME and other economic activities. ये पहला ऑब्जेक्टिव, क्रेडिट मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर को, रूरल एरिया. We can understand. To promote bank's role in overall development of the rural sector. तो बैंक का ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसको प्रमोट करना. तीसरा ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट नीड्स को मीट करना रूरल इकोनॉमी की. दैट वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती थी. ए लीड बैंक ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान. एक लीड बैंक ऑफिसर प्लान बनाते थे, क्रेडिट प्लान, एंड मॉनिटर उसका इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते थे. द एलबीओ, जो लीड बैंक ऑफिसर, कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वेरियस बैंक्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम 2013. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर ऑफ. तो आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटर है, वो बैंक्स को किन एस्पेक्ट्स में रेगुलेट करता है. लिक्विडिटी ऑफ द असेट, दैट इज योर फर्स्ट. इट इज करेक्ट बिकॉज आरबीआई डज रेगुलेट बैंक्स को रेगुलेट करता है फॉर एसएलआर एंड सीआरआर बोथ. सीआरआर, एसएलआर, ये तो कैश के फॉर्म में ही, राइट. एंड एसएलआर इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एज वी नो. तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ सीआरआर है. तो दिस इज करेक्ट. ब्रांच एक्सपेंशन, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कोई भी बैंक जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में आता है, जो कि आपने पढ़ा होगा. उस केस में न्यूज आती है कि ये बैंक अब ब्रांचेस नहीं खोल सकता है. ऑल्सो कई बार न्यूज में भी आता है कि ये आरबीआई ने एक पर्टिकुलर बैंक को और ब्रांचेस खोलने की परमिशन दी है. तो आरबीआई ब्रांच एक्सपेंशन के केस में भी बैंक्स को रेगुलेट करता है. तो ये भी सही है. merger of the banks. Now, merger of the banks and also other regulated institution जैसे इंश्योरेंस में भी होता है, वो रेगुलेटर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर दो बैंक मर्ज करना चाहते हैं, तो उन्हें रेगुलेटर से अप्रूवल, जो कि आरबीआई है, उनसे अप्रूवल देनी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनिंग दैट देयर इज हेल्दी कंपटीशन इन द बैंक. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वाइंडिंग अप द बैंक्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि हर बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं.
अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रेगुलेटर से परमिशन लिए आपने बैंक बंद कर दिया और चले गए, ठीक है, तो डिपॉजिटर का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स में भी उन्हें रेगुलेट करना होता है। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। Therefore, the correct answer is D, which is 1, 2, 3, 4. So, RBI regulates bank in terms of liquidity of the sub, branch expansion, merger of the bank, and winding up of the banks. An increase in bank rate generally indicate that the a question from the year 2013. तो जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बैंक रेट में अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या, क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। बिल्कुल ही उल्टा लग रहा है, बैंक रेट बढ़ रही है तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगी, यू कैन इजीली रिजेक्ट दैट। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। ये तो नहीं बोला है, बैंक रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को रिलेटिवली लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। रेट बढ़ी है, ये नहीं बोला है कि नो लॉन्गर लोन नहीं दिए जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए इजी मनी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए, ऑप्शन डी इज टाइट मनी पॉलिसी। अब अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिसी, वन इज टाइट, वन इज लूज। इन दिस मनी सप्लाई जो होती है उसको इज रिड्यूस्ड, इन दिस मनी सप्लाई is increased. Correct? Here there is increase in rates like repo rate, bank rate. On the other side, here we observe reduction slash decrease in interest rate like repo and bank rate. Therefore, if the bank rate is being increased, as we saw in the question, the central bank is finding tight monetary policy and not the loose monetary policy. Now, we'll come back to our question. So, what is central bank following? It is following tight money policy because it is increasing the bank rate. वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर लोगों के पास लोन लेने के इंसेंटिव को कम कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई को टाइट कर रहे हैं, ना कि इजी कर रहे हैं। इजी कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट को, बैंक रेट को कम किया जाए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। So we can read a little bit. A tight monetary policy is undertaken by central bank to constrict spending in economy with an objective to curb inflation. So what is our objective with the tight monetary policy? To curb inflation when it is rising too fast. The increased bank rate increases the cost of borrowing. तो बैंक रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है, जो लोन की अट्रैक्टिवनेस को कम करती है। Therefore, our correct option was option D. Now, let's look at this question. Which of the following grants direct credit assistance to rural household? 2013 का क्वेश्चन है। इनमें से, तीन में से कौन से इंस्टीट्यूशन है जो रूरल हाउसहोल्ड को डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं? पहला, रीजनल रूरल बैंक। दिस इज करेक्ट। रीजनल रूरल बैंक का ऑब्जेक्टिव ही यही था जब उनको सेट किया गया था कि वो रूरल एरियाज में लोन देंगे, डायरेक्ट लोन देंगे, तो ये काम करते हैं। सेकंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इफ यू हैव रेड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नाबार्ड एंड द स्ट्रक्चर, नाबार्ड रूरल एरियाज में
लोन देते हैं, बट ये लोन वो रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्टली नहीं देते। नाबार्ड इन लोन्स को रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ए रीजनल रूरल बैंक ने लोन दिया, उसके बाद वो नाबार्ड के पास जाते हैं कि इतना हमने लोन दिया है, इसके बदले में आप हमें पैसा दे दीजिए। तो वो रीफाइनेंसिंग करते हैं, मतलब एक बार जो लोन दे चुका है उस पूरे पूल ऑफ लोन को वो खरीद लेते हैं। So that is the way they provide. NABARD provides credit to regional rural bank and cooperative bank, which finally leads to rural household. Rural household को मिलता है, but वो directly नहीं देते. So therefore, this option is land development. Land development bank जो है, ये rural areas में काम करते हैं and agriculture के लिए credit provide करते हैं, और ये भी directly credit rural household को provide करते हैं, तो ये भी सही है. Therefore, जब हमने second reject किया तो हमारा ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन सी बचा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कैसे, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है, तो आप सही आंसर पर आ सकते हैं। आपको लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं भी पता था तो भी ये आंसर निकल के आता है। थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल आर्टिसन एक्सेट्रा। ये तो लैंड डेवलपमेंट बैंक का काम है। आरआरबी का पर्पस क्या है? मेन पर्पस ऑफ आरआरबी इज टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वहां पे सेविंग को मोबिलाइज करना इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, लोन देना, एडवांस देना टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल आर्टिसन, तो रूरल एरिया में डाल देते हैं। नाबार्ड थर्ड, नाबार्ड डज नॉट गिव डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस, डायरेक्ट नहीं देते हैं क्रेडिट असिस्टेंस, इट प्रोवाइड क्रेडिट बाय इंटरमीडिएरीज। किसको किसको देते हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं एंड रूरल रीजनल रूरल बैंक को देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2013 का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, इन्फ्लेशन उधार लेने वाले को फायदा करती है। अगर आपने उधार लिया तो इन्फ्लेशन को फायदा होगा आपको, और जिसने उधार दिया उसका, अगर एक का फायदा तो एक का नुकसान। सेकंड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर। अब ये देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन्फ्लेशन या तो उधार लेने वाले को फायदा कर सकती है, या बॉन्ड होल्डर जो कि उधार देने वाले उनको फायदा कर सकती है, राइट? सो वी कैन एलिमिनेट दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी करेक्ट। एंड इफ यू नो दैट, व्हिच वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर एक इंडिविजुअल 100 रुपए बोरो करता है आज, तो लेट्स से देयर इज अ बोरोवर, उसने 100 रुपए बोरो किया, कहां से? यहाँ पे आपका क्रेडिटर 100 रुपए क्या, तो आज ये 100 रुपए की परचेज कर पाएंगे, और इनके बीच एग्रीमेंट होता है, बोरोवर बोलता है मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा 1 साल बाद, और आपको 105 रुपए वापस कर, ठीक है। लेकिन इस बीच में इन्फ्लेशन 10% हो जाती है, यानी जो क्रेडिटर है स्लैश बॉन्ड होल्डर है, उसने 100 रुपए के वैल्यू की परचेजिंग पावर को गिव अप छोड़ा था इस साल में, ईयर 0 में, ताकि अगले साल उसकी परचेजिंग पावर, ये जूम करके कि 105 मिलने पे उसकी परचेजिंग पावर सेम रहेगी, उसे कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10% हो जाती है तो उसे 105 मिलेंगे, जबकि जो भी जैसे सर्विसेज और गुड्स वो खरीद सकते थे 100 में, उसकी वैल्यू बढ़ के 110 हो गई है। एक साल बाद इन्होंने इन्हें दिए 105, और जो ये खरीदना चाहते थे, जिसको उन्होंने छोड़ दिया था ईयर 0 में, उसकी वैल्यू हो गई 110। तो आप समझ सकते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बोरोवर यानी कि डेटर, जिसने उधार लिया है, उसका फायदा होता है, और जिसने उधार दिया क्रेडिटर बॉन्ड होल्डर, उसका नुकसान होता है, क्योंकि जो भी गुड्स या सर्विसेज उन्होंने पहले साल में छोड़ दिए थे खरीदना, वो कंज्यूम कर सकते थे, उन सारी चीजों की वैल्यू अगले साल में ज्यादा बढ़ जाएगी, और उन्हें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कम होगा। जैसे उन्होंने 5% इंटरेस्ट की डिमांड की थी, लेकिन इन्फ्लेशन सरप्राइज होकर 10% आ जाती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन benefits the borrower slash debtor and it hurts the creditor and bond holder. Let's come back to the question now. क्वेश्चन में देखते हैं, तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, विच इज करेक्ट,
inflation benefit the bondholder, it is not correct. Therefore, your correct option is option A, right? You're looking at correct statement. I hope this is clear. It's an important concept which it can be asked in the examination. Those who benefit from higher inflation are debtor, right? Debtor जैसे कि मैंने आपको बताया था. On the other hand, creditors suffer from it. जिसने उधार दिया bond holder, जो हम creditor भी बोल सकते हो ना, bond holder उनका. If one has substantial debt, each rupee has to repay would be worth less than when it was borrowed. तो इसी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है. In this way, one pays that less in term. आप समझ सकते हैं कि आपने 100 रुपए की वैल्यू इस साल में फोरगोन की, ये सोच के कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन ज्यादा आती है और आपका नुकसान हो सकता है. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट. 2013 का क्वेश्चन है ये. क्या देखना है हमें? लिक्विड एसेट. डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक. सेकंड, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक. थर्ड, सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक. ठीक है. और फोर्थ, करेंसी. ये इस समय पर हमारे ऑप्शन. The correct sequence of these assets in decreasing order of liquidity. Before we look at this option, I want to mention this. Liquidity का मतलब होता है कितनी ease के साथ कोई भी जो asset है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. उसको कैश में हम कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं जो फोर्थ है यानी करेंसी, इट इज इटसेल्फ कैश. सो इट इज द मोस्ट लिक्विड. सबसे ज्यादा लिक्विड तो कैश है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आपका 4 आएगा, राइट. वी विल आल्सो यूज एलिमिनेशन मेथड हियर, सो वी कैन एलिमिनेट नाउ. 4 सबसे लेफ्ट में होना चाहिए तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ इफ यू हैव स्टडीड बैंकिंग यूनिट, आप समझ सकते हैं कि जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो भी काफी लिक्विड होते हैं. कैसे लिक्विड होते हैं? अगर आपका अकाउंट है, किसी भी दिन जाकर वो अपने पैसे सेविंग अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं. और जो बैंक होता है वो आपको पैसे विड्रॉ करने से मन रोक नहीं सकते. तो डिपॉजिट है उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लिया तो ये भी हाईली लिक्विड है और आपको मना नहीं किया सकता. तो यहाँ पर इसके बाद आपका थर्ड आएगा, राइट. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो टाइम डिपॉजिट है एंड डिमांड डिपॉजिट है, दे आर रिलेटिवली लेस लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, टाइम डिपॉजिट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, कि आप उसको एक टाइम के बाद ही ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है, जैसे फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीक डेज, आप उसको तभी विड्रॉ कर सकते हैं. हाउएवर इन सम केसेस आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़ भी सकते हैं. वहां पे थोड़ी सी पेनाल्टी होती है बट उसको तोड़ा जा सकता है, तो वो भी काफी लिक्विड होता है. तो यहाँ पर आपका टाइम डिपॉजिट आएगा और सबसे लास्ट में आपका डिमांड डिपॉजिट आएगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. अगर आपको यहाँ पर दो भी बताए 4 and 3, तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा बी. तो इस क्वेश्चन में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, वो है लिक्विडिटी. कितनी क्विकली ईज के साथ एक असेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये था एसेंस यहाँ पर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. What is are the facilities the beneficiary can get from services of banking correspondent बैंक साथी in branchless area. तो कौन सी सर्विसेज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे कि बैंक साथी कहा जाता है, वो प्रोवाइड करता है ब्रांचलेस एरिया में, जहां पर ब्रांच नहीं है. ऐसी कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करता है? लेट्स रीड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इट enables beneficiary to draw their subsidies and social security benefits. जो भी इंडिविजुअल है वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बैंकिंग साथी की सहायता से सब्सिडीज विड्रॉ कर सकते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट कर सकते हैं. पहला. दूसरा, enable the beneficiary in rural areas to make deposit and withdrawal. डिपॉजिट एंड विड्रॉ. तो अगर आप लोगों ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के बारे में पढ़ा है, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एक इंडिविजुअल होता है जिसको बैंक अपॉइंट करती है, और ये ऐसे एरिया जहां पर बैंक की ब्रांच नहीं होती है, वहां पर छोटे स्केल पर और छोटे क्वांटम में बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. उसमें डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही होता है. तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही. अब क्योंकि अगर वो डिपॉजिट और विड्रॉल प्रोवाइड करता है, तो कई बार जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी सोशल सिक्योरिटी वगैरह जाती है वो बैंक
अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बोथ 1 एंड 2। थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के बाद। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट रिटेल एजेंट है, ठीक, इंगेज बाय बैंक, इनको बैंक ने इंगेज किया हुआ है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस लोकेशन अदर देन ब्रांच, जो बैंक की जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, एटीएम नहीं है, वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करें। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ठीक। तो बैंक है, अगर कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंट गलती करता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, देयरफॉर उनका ड्यू डिलिजेंस वगैरह होता है। क्या क्या करते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, अब हम ये जान लेते हैं। परमिटेड वैरायटी ऑफ फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, राइट, कलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन, तो लोन एप्लीकेशन को कलेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग भी करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग एंड अदर प्रोडक्ट, एजुकेशन, advice on managing money, debt counseling, processing and submission of application of bank, promoting, nurturing, monitoring of self SHG, joint liability group etc. ये आपको यहाँ पे दिया हुआ। साथ ही कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट, तो थोड़ा बहुत जो डिपॉजिट है उसको कलेक्ट करते हैं, स्मॉल वैल्यू क्रेडिट को डिस्पर्स भी करते हैं। तो वी कैन सी हियर कि हाउ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स प्रोवाइड इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज। हालांकि आजकल के टाइम में बैंक की फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है और डिजिटल की वजह से इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट नॉनदलेस एक समय था जब इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसका पर्पस क्या है? अब अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर दो रिजर्व्स आते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SL, राइट, ये दोनों ही लीगली मैंडेटेड रिजर्व्स होते हैं इंडिया में, CRR एंड SLR। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, एक सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है कितनी क्रेडिट क्रिएट होगी, दैट इज करेक्ट। अगर आप जानते हैं तो CRR यानी कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक को कैश में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है और उस अमाउंट को लोन नहीं दिया सकता, तो उतना अमाउंट तो लोन होता नहीं, इस तरीके से कंट्रोल। सिमिलरली SLR, ये अमाउंट लोन नहीं दिया सकता बल्कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में रखा जाता है, जैसे कि गोल्ड में भी रख सकते हैं, कैश में भी रख सकते हैं, बट ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। तो दिस इज करेक्ट। सो वंस वी हैव वन we can actually eliminate some, which is C, eliminate कर सकते हैं। To make the people deposit with bank safe and liquid, to make the people deposit with the bank safe and liquid, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो SLR और CRR है उनका ऑब्जेक्टिव है कितनी क्रेडिट क्रिएट होगी और उसको कंट्रोल करना, तो दिस इज नॉट एक्चुअली, वी कैन एलिमिनेट। थर्ड, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, अभी एक्सेसिव प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है कंपटीशन इन द बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम में कितना कंपटीशन है वो उस पर डिपेंड करेगा, ना कि SLR एक्सेट्रा वगैरह पे डिपेंड करेगा। हालांकि इट कैन इम्पैक्ट बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए मीट करने डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए जो दोनों ही रिजर्व है CRR SLR, इन दोनों का वॉल्ट में कैश से कोई रिलेशन नहीं है, वो बैंक खुद ही अपनी ऑपरेशन के लिए मेंटेन करते हैं, तो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने समझा हाउ द रिजर्व रिक्वायरमेंट लाइक CRR and SLR प्ले द रोल ऑफ इनेबलिंग सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल कितने एडवांसेस यानी कि लोन बैंक देंगे, और इसका इन तीनों एस्पेक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। CRR restricts the amount of deposit a bank can lend. Further, SLR is used to control money supply and credit offtake. Therefore, one is correct. Second, may or may not be correct. To make people deposit safe, there is capital adequacy ratio, not CRR and SLR. तो डिपॉजिट सेव करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो ऑनर को इस कंपनी बैंक में रखना। 3 is definitely wrong. As to control excess profit, margin would have to be reduced. तो मार्जिन कम होने पड़ेंगे
CRR और SLR से वैसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एंड रिजल्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू द वन, जैसा कि मैंने मेंशन किया था। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन रिजल्ट रिक्वायरमेंट। लास्ट क्वेश्चन, बेसल 3 accord or simply Basel 3. So here we have a question from 2015. Basel 3 accord or simply Basel 3 often seen in news seeks to. तो बेसल 3 जो कि आप न्यूज में सुनते हैं कई बार, उसका पर्पस क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। If you have studied environment and economics, you can clearly understand the Basel 3 does not have anything to do with biological diversity. This was a wrong option. Biological diversity कोई नहीं. Improve banking sector ability to deal with financial and economic stress and improve risk management. This seems okay, but let's read other options also to understand कि अगर कोई और option better ना हो. C. Reduce the greenhouse gas emission, but place a heavier burden on developed country. Once again यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस संख्या का लाया गया है, बट उसका भी कोई रिलेशन नहीं है. Transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbon in refrigeration with harmless chemicals. Once again, this is a irrelevant option, not related to the Basel 3 या Basel 1, 2 and then 3 are all related to banking sector. So they improve banking sector's ability to deal with financial and economic stress and improve risk management. और इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में और भी बढ़ गया, और इंडिया जो है बेसल 3 में पार्टली कंप्लाइंट है, और थोड़े बहुत जो कंप्लाइंसेस हैं वो आगे होंगे, बिकॉज देयर वाज अ कोविड, सो वी सॉर्ट ऑफ डिलेड ऑन कंप्लाइंस विद द बेसल 3. ये मैं आपको जानना चाहूंगा. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन we have seen here. If you have liked our video, please hit the subscribe button. Also write in the comment section what is the requirement of capital adequacy as per Basel 3 norms for Indian banks. Thank you for watching this, and I will see you in the next video.